ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग अब तक फर्स्ट चैप्टर पे ही है एंड क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है और बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है। एज आई सेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टोटली बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल कंसेप्ट। यू आर लकी गाइस, सो you don't have any theoretical exam. Means your theory exam will be conducted as the MCQ online exam. Okay, so if there is, you have to write the theory paper. अगर आपको लिखना होता वो थियरी पेपर, देन दैट वाज द हेक्टिक टास्क, बिकॉज वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही लेंदी कंसेप्ट रहते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जितना आप पढ़ोगे, जितना दो दो तीन तीन बार पढ़ोगे, उतना आप कैपेबल होके आंसर लिखने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है और एक ही कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। सो जितना आपका रीडिंग है, क्योंकि कंसेप्ट समझना अलग बात है और पेपर में लिखना अलग बात है, ठीक है। सो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके पास एक वोकेबुलरी सेट है, सो यू कैन एबल टू राइट द थ्योरी पेपर, ठीक है। बट ठीक है, अपना ऑनलाइन एग्जाम है, सो जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट पार्ट। ओके, सो जो बाकी है अभी लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में, वो देख लेते हैं और इफ पॉसिबल यही लेक्चर में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। Okay, so our topic is criteria for selecting software process model. Okay, so the software process model framework is specific to the project. Process framework model means our communication planning जो 5 activities है वो, it is specific to the project. Means it totally depends on the project nature. Okay, thus it is essential to select the software process model according to the software which is to be developed. So uh, there are a lot of software models available in software engineering process. We have seen, okay, we have seen all the software models presented in present available in our software engineering approach, like waterfall, spiral. Okay, so depending on the project nature, we choose that सॉफ्टवेयर मॉडल। जैसे कि प्रोजेक्ट नेचर सपोज वाटरफॉल मॉडल के लिए अप्लीकेबल है, सुटेबल है, सो वी गो अहेड विद द वाटरफॉल मॉडल। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट नेचर, we select those software project process model to run our program, to run our project concurrently. Okay, so the software project is considered efficient if the process model is selected according to the requirements. Means if we choose the appropriate suitable project model, then we can say that the software project is considered to be efficient. Okay, it is also essential to consider time and cost while choosing a process model. मीन्स अभी ये बहुत सारी चीजें हैं, टाइम और कॉस्ट ही नहीं, सो और भी बहुत सारी चीजें लाइक पीपल मैनेजमेंट, देन स्केड्यूलिंग, प्लानिंग। सो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को वो चूज करना है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल विच इज सुटेबल टू अस एंड टूवर्ड्स द और software engineering journey. Okay, so the basic characteristics required to select the process model are project type and associated risk, requirements of the project and the users. So while we are dealing with the selection criteria, these four parameters we have considered. Like first is project type, in which type, what is the type of the individual project. Okay, ये matter करने वाला है while we are dealing with the selection criteria. Then second is associated risk, means if we choose the particular software project model, then what expected risk is occurred during the future, during my environment या फिर during my running environment. Okay, थर्ड इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट क्या है प्रोजेक्ट की, वो हिसाब से भी मुझे वो सिलेक्ट करना है। क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ही लो है और मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड मॉडल यूज कर रहा हूँ लाइक अजाइल, सो इट इज नॉट फेयर। ओके, इट इज नॉट कंसिडरेबल। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, दिस रिस्क एंड प्रोजेक्ट टाइप और यूजर भी, वो हिसाब से हम लोग को सिलेक्ट करने होंगे। One of the key feature of selecting process model is to understand the project in terms of size, complexity, funds available and so on. Okay, so key factor कौन सा है to select the process model? First is size, उसकी साइज कितनी है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड फंड्स अवेलेबल। मेरा कितना बजट है, मैं कितनी लेवल तक कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर सकता हूँ, मेरे पास उतने कंपनी में लोग कितने हैं, और वो प्रोजेक्ट की साइज कितनी है। ओके, सो on behalf of this three module, on behalf of this three parameter, we select the process model.
इन एडिशन द रिस्क विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। अभी रिस्क ऐसी एक चीज है जो हम लोग हर एक लेवल पे कंसिडर करने ही वाले, ठीक है। सो रिस्क को निगलेक्ट करके कुछ मतलब ही नहीं है। रिस्क बाय डिफॉल्ट हम लोग को मेंशन करना ही है। अगर यहाँ पे पॉइंट पे नहीं रहेगा फिर भी हम लोग रिस्क को पकड़ के ही चलने वाले, मतलब रिस्क का पॉइंट ऑफ व्यू रख के ही हम लोग को सिलेक्ट करने वाले। एंड ओनली अ फ्यू प्रोसेस मॉडल एम्फसाइजेस रिस्क असेसमेंट। और जितने मॉडल अवेलेबल है अपने पास, apart from those process model, only few of them are going to focus on the risk assessment. Okay, remaining of the process model is usually neglect the risk part, the risk assessment part. Various other issues related to the project and the risk are listed table. Okay, so यहाँ पे अभी तीन टेबल आप लोग को दिखने वाले स्क्रीन पे। so that table is वर्क एज अ गाइड टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रोसेस मॉडल। मतलब ये टेबल मुझे बताएगा कि अगर सीन ऐसा है तो मुझे कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए, ठीक है। सो माय फर्स्ट टाइप इज प्रोजेक्ट टाइप एंड एसोसिएटेड रिस्क। सो ऑन कंसिडरिंग दिस प्रोजेक्ट टाइप एंड एसोसिएटेड रिस्क वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल, रैड या फिर फॉर्मल मेथड्स, ठीक है। सो ये ध्यान में रखते हुए मैं ये सिलेक्ट करने वाला हूँ। म्हणजे जर सपोज हा एक फॅक्टर आपण पकडूया। फर्स्ट फॅक्टर इज रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक आहे। सपोज मला रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हा पॉइंट कन्सिडर ठेवून जर काय सिलेक्ट करायचं असेल, ओके, सो गो अहेड विथ द राइट ऑनवर्ड्स। तर मी काय करणार, वॉटरफॉल मॉडल सिलेक्ट करणार का, इकडे आलेलं आहे नो, सो आई शुड नॉट गो विथ द वॉटरफॉल मॉडल। उसके बाद प्रोटोटाइप मॉडल नो, ठीक है। मतलब रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ये अगर प्रोजेक्ट टाइप और एसोसिएटेड रिस्क के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू दैट अगर वो ये रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आ रहा है, सो आई शुडंट गो अहेड विथ द वॉटरफॉल मॉडल, नाइदर द प्रोटोटाइप, बट रैड भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो सबसे बेस्ट कौन सा है, इफ आई कैन यूज द स्पाइरल मॉडल या फिर फॉर्मल मेथड्स, क्लियर। तो ऐसे मुझे सिलेक्शन करना है। दूसरा है स्टेबल फंड्स, मतलब मेरा जो बजट है या फिर जो पैसे आने वाला है वो स्टेबल है। मतलब सपोज 6 महीने का प्रोजेक्ट है मेरा, एंड ऑन दैट 6 मंथ आई नीड ईच एंड एवरी मंथ 10,000 रुपीज फॉर माई प्रोजेक्ट बिल्डिंग पर्पज। ओके, 10,000 रुपये मुझे चाहिए मेरा प्रोजेक्ट कंकरेंटली वर्क करने के लिए। and suppose the consumer, the end user will provide that 10,000 rupees on each and every month up to that 6 month duration। अगर वो consistently आ रहा है मेरे पास पैसा, मतलब स्टेबल फंड्स है, सो आई कैन गो हेड विद द वाटरफॉल मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल भी उसके लिए बेस्ट है, रैड मॉडल भी बेस्ट है। रैड क्या है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और फॉर्मल मेथड्स भी बेस्ट है, बट आई कैन नॉट चूज द स्पाइरल मॉडल इन दैट केस। मतलब स्टेबल फंड्स में मैं स्पाइरल मॉडल चूज नहीं कर सकता, ओके। उसके बाद है रीयूज कंपोनेंट्स, मतलब मैं कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकता हूँ, ऐसा अगर सीन है। सो वाटरफॉल मॉडल नहीं सिलेक्ट करना है, वाटरफॉल को छोड़ के बाकी सब जो मॉडल्स है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ओके। टाइट प्रोजेक्ट शेड्यूल, मतलब डेडलाइन जो है, डेडलाइन मतलब उसने सपोज बोला कि 1 सितंबर 2021 को मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, सो टाइट डेडलाइन है, उसको वो डेट में चाहिए ही। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वाटरफॉल मॉडल को निगलेक्ट कर दूंगा और फॉर्मल मेथड्स को निगलेक्ट कर दूंगा। आई कैन प्रेफर दिस प्रोटोटाइप, स्पाइरल और रैड मॉडल, ओके। और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस का प्रेडिक्शन या फिर रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी में डिसाइड नहीं कर सकता एट दैट पॉइंट। सो सेम है, जो नो बोला है वो मैं निगलेक्ट कर दूंगा और आई कैन गो अहेड विद द प्रोटोटाइप और स्पाइरल मॉडल, क्लियर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट सीन है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब क्या, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड अर्ली इन एसडीएलसी। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी का फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो बिफोर दैट एस्टेब्लिशमेंट इफ द रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर, मतलब वो पहले ही अर्ली, मतलब क्या पहले ही वो क्लियर है, सो आई कैन चूज वाटरफॉल एंड रैड मॉडल, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट्स इजीली डिफाइंड है और अंडरस्टैंड, मतलब रिक्वायरमेंट्स बहुत ही इजी है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम है, सो आई कैन निगलेक्ट दिस
spiral model and go ahead with the spiral and prototype model, and I can go ahead with the waterfall, rad and formal method. सेम अभी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रहे हैं तो फिर मैं ये दो यूज करूंगा. रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो मैं ये दो यूज करूंगा. ठीक है. सो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर गूगल कर दो, मिल जाएगा. ecomputernotes.com करके साइट है, या फिर आप लोग ने सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल ऐसे गूगल भी कर दिया तो वो फर्स्ट रिजल्ट यही है. ठीक है. सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. देन द नेक्स्ट इज table selection on the basis of users. Okay, so this will indicate that user environment first is requires limited user environment. मतलब बहुत ही कम लोग मेरे पास अगर कंपनी में है तो मैं कौन सा यूज करूंगा, वाटरफॉल और स्पाइरल या फिर फॉर्मल मेथड्स. ठीक है. यूजर पार्टिसिपेशन इन ऑल फेजेस, मतलब डेवलपर टेस्टिंग भी कर रहा है, टेस्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर रहा है, यूजर सब जगह पे इवॉल्व है. सो मैं यूज करूंगा प्रोटोटाइप या फिर रैड मॉडल. ठीक है. और नो एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सिमिलर प्रोजेक्ट, मतलब जो जिसको काम दिए उसे सिर्फ इतना ही काम आ रहा है. सो आई कैन गो एड विद द प्रोटोटाइप एंड स्पाइरल मॉडल. सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट क्या है. डेवलपमेंट पूरा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग कोडिंग करने वाले, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं. कोडिंग इज द major task, major point in our software engineering process. But before that, we have to communicate, we have to plan, we have to model the software product, and after that we are going to sit in the front of computer, in front of the laptop and actual code. कोडिंग के बाद टेस्टिंग और उसके बाद डिप्लॉयमेंट. सो ये उतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये मॉडल्स क्यों डिजाइन किए हम लोग ने, कैसे इफेक्टिव अपना काम हो सकता है, ये सारी चीजें देख ली. और आज के लेक्चर में हम लोग ने लास्ट टॉपिक देख लिया, विच इज यूजफुल टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रोसेस मॉडल फॉर माई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. विच इज सुटेबल फॉर, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि वो अप्रोप्रिएट कैसे हो सकता है या फिर मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ. सो यूजिंग दीज 3 टेबल आई कैन चूज द अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट मॉडल. ओके, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल. ओके, सो अभी सेकेंड चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट है वो देख लेते हैं, उसका क्या हम लोग एक्चुअल में पढ़ने वाले वो देख लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ओके, सो सी हियर, our first unit is software development process, and on that process we covered this topic like इंजीनियरिंग लेड अप्रोच कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक, सॉफ्टवेयर क्या है, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, उसके बाद अजाइल वाला बहुत बड़ा पार्ट देखा, और आज के लेक्चर में हम लोग ने सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा. ठीक है. सो अब तक हमारा सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही हुआ है. उसके बाद सेकेंड चैप्टर इज लाइक अबाउट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. ठीक है. सो अभी हम लोग एक एक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे. जैसे कि पहली एक्टिविटी कौन सी है, कम्युनिकेशन. ओके, सो इन द कम्युनिकेशन टास्क वी फेच द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर. ओके, सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अबाउट द we fetch the requirements from customer. So how we can process them, how we can engineer them using various activities, various principles, and generate one appropriate report which is helpful to create one software product efficiently, appropriately, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एरर फ्रीलेसली. ठीक है. सो वो कैसे हेल्प करने वाला है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, या फिर उसमें कौन कौन से टास्क है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स ही है. कम्युनिकेशन कैसे करना है, कस्टमर के साथ कैसे बात करनी है, आई कॉन्टैक्ट एंड ऑल द स्टफ, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ओके, तो टोटल अपने 5 है यूनिट, एंड यहाँ पे देखो फर्स्ट यूनिट इज अबाउट 12 मार्क्स के लिए है फर्स्ट यूनिट. सेकेंड यूनिट अपना 14 मार्क के लिए. ठीक है. सबसे ज़्यादा वेटेज है फोर्थ यूनिट को, लेकिन ये सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ 14 मार्क्स के है. सो वो हम लोग फोकस करेंगे. आपका यूटी भी आ रहा है. ठीक है. सो यूटी के पहले हम लोग सेकेंड चैप्टर खत्म कर देंगे और फर्स्ट चैप्टर पे आपका यूटी रहेगा, या फिर जितना होगा यूटी के टाइम तक जितना सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बेस पे आपका यूटी रहेगा. ठीक है. थैंक यू.